یسوع مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے۔ آج ہم جانیں گے کہ اوریجنل سن تھیولوجی کیا ہے، اوریجنل سن ڈاکٹرن کیا ہے، یہ کس بنیاد پر جو ہے ظہور میں آئی ہے اور اس کو وجود دینے والا کون ہے۔ اوریجنل سن یہ مسیحی تعلیمی نظریہ ہے جو یہ بیان کرتا ہے کہ ہمارے ماں ہوا اور باپ آدم نے جو نافرمانی کی، ان کی نافرمانی کا جو عمل کیسا تھا، اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کی نافرمانی کے سبب سے ساری انسانیت لا علاجی اور انتقالی کا شکار ہوئی۔ اب اوریجنل سن کی جو تھیولوجی ہے یہ کرسچن تھیولوجینز کا نظریہ ہے، جبکہ یہودی اسکالرز اس نظریے کو بطالت، ناقص اور جھوٹا قرار دیتے ہیں، اور اس نظریے کو وجود دینے والا سینٹ اگسٹن آف کیتھولک ازم، فادر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں فادر اگسٹن، پریسٹ اگسٹن آف کیتھولک ازم، جس نے اس نظریے کو وجود میں دیا کہ اوریجنل سن جو ہے آدم اور ہوا نے کیا، جس کے باعث انہیں باغ عدن سے باہر نکال دیا، جس کے باعث گناہ دنیا میں آیا، جس کے باعث جو ہے نافرمانی دنیا میں وجود پائی۔ اور سینٹ اگسٹن تھیولوجین آف کیتھولکزم کے نظریے کو مارٹن لوتھر اینڈ جان کیلوین نے بھی اس نظریے کو اپنایا اور پروٹیسٹنٹ پینٹیکوسٹل کلیسیا میں بڑے اور خاص پیمانے پر افشاں اور ظاہر کیا۔ اور اب یہ نظریہ جو ہمیں ملتا ہے، اس کا تصدیق ہمیں پیدائش کی کتاب میں سے اس کا 3 باب اور اس کی 2 اور 6 آیت سے میں پڑھوں گا۔ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا ان کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ اب یہ نظریہ اوریجنل سن کا کہ جب ہوا نے سانپ کے بہکاوے میں آ کر وہ پھل جب کھایا، ان کے گناہ کے باعث ہوا نے جب پھل کھا کر اپنے شوہر کو بھی دیا آدم کو، جب اس نے یہ پھل کھایا تب اس کے پھل کھانے کے باعث گناہ دنیا میں آیا۔ زمین پر پہلا گناہ آدم اور ہوا نے کیا، اور زمین پر پہلا گناہ کے باعث جو ہے تمام دنیا میں، تمام قوموں میں، تمام نسلوں میں ہوا اور آدم کے باعث جو ہے گناہ دنیا میں وجود لایا، جس کے باعث تمام قبیلے، امتیں جو ہے گناہ کا شکار ہیں، کیونکہ تمام قومیں، امتیں، قبیلے اور مذاہب آج اگر وجود دنیا میں رکھتے ہیں یہ ہوا اور آدم ہی کی نسل سے ہیں، جس کے باعث، جس کی وجہ سے، جس کے تخم سے جو ہے تمام نسلیں اور جو ہے قبیلے، امتیں وجود میں آئی ہیں۔ اب اسی لیے
आदम और हवा के गुनाह के बायस इसीलिए पूरी दुनिया को आज आज पूरी दुनिया को नजात की ज़रूरत है। आज ओरिजिनल सिन में बहुत से लोग धंसे हुए हैं। आज बहुत से लोग, बहुत से मज़ाहिब, बहुत सी कौमें, बहुत सी उम्मतें नजात का मंतज़र करती हैं, पर वो नजात याफ्ता नहीं है। क्योंकि नजात के लिए एक हस्ती, एक शख्सियत की ज़रूरत थी, जिसका आना ज़रूर था और जिसके खून बहाए बग़ैर, जिसकी कुर्बानी का बग़ैर कोई कौम, कोई मज़हब, अगर जब वो हिंदू है, सिख है, ठीक है, इस्लाम है, मुसलमान है, वो नजात नहीं पा सकते। क्योंकि एक शख्सियत की ज़रूरत थी जो ओरिजिनल सिन से आज़ाद कर सकता था। वो ओरिजिनल सिन जिस उम्मत पर, जिस तुख़म ने वजूद लेना है, जिस उम्मत, जिस कबीले, जिस कौमों ने वजूद लिया है, वो लानत की शिकार हैं। पैदाइश की किताब और उसका 17वां बाब में लिखा है, और आदम से उसने कहा, चूँकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई मुशक्क़त के साथ वो अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा। किस पर? अब खुदा ने आदम और हवा को लानत दी है। 16 में लिखा है, फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरे रग़बत अपने शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। अब आदम और हवा पर खुदा ने कर्ज किया है। अब इस कर्ज में जितनी कौमें, उम्मतें, नस्लें, मज़ाहिब वजूद में आए हैं, वो सब ओरिजिनल सिन के शिकार हैं। लेकिन वो बैठे हैं कि नजात पा बैठे हैं। नो, देयर इज़ ओनली सल्वेशन इन थ्रू द जीसस क्राइस्ट। बग़ैर यसु मसीह के, बग़ैर मसाया के, बग़ैर मसीह के नजात नहीं है। आदम से निकली हुई नस्लें, तुख़म सब जो है गैर नजात याफ्ता हैं। वो सब गुनाह में हैं, वो सब ओरिजिनल सिन की जो है लपेट में हैं और गुनाह में हैं। वो नजात में नहीं है, वो गुनाह में हैं, वो गुनाह की दलदल में हैं, वो बेसुकूने हैं, उन्हें आराम नहीं है। अगर वो कुर्बानियाँ भी कर लें, अगर वो चढ़ावे भी चढ़ा लें, पर वो नजात नहीं पा सकते। बेशक वो यहूदी क्यों ना हो, यहूदी भी आज ये नजात याफ्ता नहीं है। अगर चाहे वो सुर्ख बचिया गुजरानते हैं कि अपनी नजात को देखें, पर वो नजात नहीं पा सकते। नजात सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से है और कोई नहीं कर सकता। सेंट अगस्टिन की ये थियोलॉजी क्या ही ज़बरदस्त थियोलॉजी है। आज भी अगर कोई कहता है कि मैं मसीह हूँ और वो ओरिजिनल सिल में है, क्योंकि वो गुनाह के अंदर है। आज अगर कोई गैर मज़हब का इंसान कहता है कि मैं गुनाह से बरी और मैं गुनाह से पाक हूँ, मैं कुर्बानी करके, मैं चढ़ा कर मैं आज़ाद हूँ, अगर मैं सेक्रीफाइस करके आज आज़ाद हूँ, अगर आज मैं सेक्रीफाइस ऑफरिंग करके आज़ाद हूँ, तो आपकी गलतफहमी है, आपकी गलतफहमी। आप नजात नहीं पा सकते, आप गैर नजात याफ्ता हैं, आप गुनाह में हैं। बेशक आप जितना भी पुकार लें अपने रब को, आप जिस भी मज़हब के हैं, आप अपने रब, आप अपने कुछ भी चढ़ा लें, कुछ भी गुजरा लें, पर आप नजात नहीं पा सकते। कि नजात सिर्फ यीशु मसीह, हज़रत मसीह में है और उसके वसीला से है। क्योंकि एक ही शख्सियत है जो नजात दे सकती है। क्योंकि पुराने इंसान ने, आदम ने गुनाह किया, पर नए इंसान ने, नए आदम ने गुनाह से हमें आज़ाद किया। और रोमियो का ख़त
नए अहदनामे में हमें तस्दीक वाज़िया मिलती है। पौलुस रसूल ने, खुदा के बंदा ने, पौलुस रसूल ने ये वाज़िया किया कि जो है ओरिजिनल सिन का जो हकीकी वजूद जो था, जो हमें वाज़िया तौर पे ओरिजिनल सिन का जो असर और वजूद हमें नज़र आता है, वो रोमियो उसके 5वें बाब और उसकी 12 आयत में मिलता है। मैं आपके लिए पढ़ दूंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 5वें बाब की 12 आयत में लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए सब ने गुनाह किया। किसके सबब से? आदम के वसीला से तमाम कौमें, नस्लें, मज़हब, उम्मतें, कबीले आदम के वसीला से, और सब गुनाह में है। अगर आप गुनाह से बचना चाहते हैं, आप जो भी कर ले, आप गुनाह से नहीं बच सकते। गुनाह आपके अंदर है, गुनाह आपको नहीं छोड़ेगा। गुनाह आपको कहेगा आप गुनाह करें, आप गुनाह की ख्वाहिश करें, आप ज़िना करें, आप चोरी करें, आप हरामकरी करें, आप लूट मार करें, क्योंकि गुनाह आपके अंदर है। वाहिद यीशु मसीह है जिसको अपना लेने से गुनाह आपको नहीं कह सकता चल चल ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਨਾਕਾਰੀ ਕਰ, ਚੱਲ ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ, ਚੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰ, ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਬੇਪਰਦਾ कर। ना, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाता है, उसकी कुदरत हमारे अंदर आ जाती है, उसका खून, उसका मसा, उसकी हजूरी हमारे अंदर समा जाती है जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आज सारे मसीही गुनाह से पाक है, नो। मसीह तो नाम के हैं, नंबर प्लेट लगाई है गाड़ी वाली। सिंध, बलूचिस्तान, कराची, इस्लामाबाद नंबर प्लेट लगाई हुई है हमारे मसीहों ने भी कि वो मसीह हैं, वो ईमानदार हैं, वो रूहानी है। नो, वो रूहानी नहीं है। मैं एलानिया कहता हूँ, वो रूहानी और मसीह नहीं है। चोरी करने वाला, ज़िनाकारी करने वाला, झूठ बोलने वाला, दगाबाजी करने वाला, ठगने वाला मसीह नहीं है, और वो भी गुनाह में है। उन्होंने यीशु मसीह को नहीं कबूल किया। अगर आप कबूल करना चाहते हैं तो कबूल करें और गुनाह से आज़ाद हों। गुनाह का असर जांचें अपने आप को। अगर मेरी बातें, अगर ये ओरिजिनल सिन की थियोलॉजी आपको झूठ लगती है तो देखें, जानें कि क्या जो है आप क्या देखें, आप जांचें क्या है गुनाह, कहाँ है गुनाह आपके अंदर। क्या आपके अंदर गुनाह है जो आपको उकसाता और बहकाता है? हाँ है, जो आपको हर वक्त, जो ना दिन और रात आपको सोने देता है। अगर मसीही बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा लेने का मतलब और मकसद है कि यीशु मसीह को पहन लेना और पुरानी उस आदम की इंसानियत को उतार देना जो हमारे अंदर है, जो मुझ में भी थी। मैंने बपतिस्मा लेकर उस पुरानी आदम की इंसानियत को उतार दिया है। और जो शख्स यीशु मसीह को कबूल करता है वो निजात पाएगा। अगर वो नहीं कबूलता तो वो नहीं निजात पाएगा, वो इसी तरह मर जाएगा। उसे कोई निजात नहीं दे सकता, क्योंकि निजात सिर्फ यीशु मसीह के पास है। और ओरिजिनल सिन का नज़रिया जो मसीही कलीसिया का है, बहुत से डिनोमिनेशंस, बहुत से फ़िरके इस नज़रिए पर जो है अमल नहीं करती, वो इस नज़रिए को झूठा करार देती हैं। बहुत सी डिनोमिनेशंस हैं जो इस नज़रिए को झूठ करार देती हैं और ये मानती हैं कि ये नज़रिया झूठा है। मज़हब यहूदियत का भी यही ख़याल है कि ये नज़रिया जो है आदम का और हवा की कुदरती फितरत थी। ये कुदरती फितरत थी उनकी, ना कि गुनाह था, जबकि ये गुनाह था। मसीही थियोलॉजियंस, सेंट अगस्टिन ऑफ कैथोलिकिज्म,
کا یہ نظریہ حقیقی ہے اور درست ہے اور واجبی ہے، لیکن بہت سی ڈینامینیشنز اس پر جو ہے ایمان نہیں رکھتی اور اس پر نہیں مانتی، اور کہتے ہیں کہ موسیٰ کی شریعت انسانی حکم کے ذریعے گناہ کی خواہش پر غلبہ پائے۔ خدا نے جو انسانی شریعت جو تھی، شریعت موسیٰ، اس کی 18 اور 20 آیت، یہودی علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ یوں فرماتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے گناہ کے باعث مرے گا، باپ بیٹے کے بدلے نہ مرے گا، نہ بیٹا باپ کے گناہ کے باعث مرے گا۔ لکھا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی سو وہ مرے گی، سو وہ ہلاک ہوگی۔ لیکن جبکہ مسیحی ڈاکٹرین اور مسیحی تعلیمی نظریہ یہ فرماتا ہے کہ جو کوئی یسوع پر ایمان نہ لائے گا وہ گناہ میں ہے اور وہ گناہ میں مرے گا، اور موت اس پر غلبہ پائے گی، اور وہ گناہ کو اپنے اندر سے نہیں نکال سکتا۔ اگر آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ گناہ سے نکلنا چاہتے ہیں، گناہ ایک تصویر کی مانند آپ کو نہ نظر آئے گا، پر گناہ آپ کے اندر موجود ہے، وجود رکھتا ہے، وہ آپ کو توبہ کی طرف نہیں بڑھنے دیتا، وہ آپ کو نہیں چاہتا کہ آپ گناہ کے دائرے سے باہر نکل کر زندگی کے دائرے میں داخل ہوں، اور وہ زندگی کا دائرہ یسوع مسیح ہے۔ یہ نظریہ مسیحی نظریہ ہے، نہ یہ یہودیت کا نظریہ ہے، نہ یہ اسلامی نظریہ ہے۔ یہ مسیحی نظریہ ہے جو آپ کو اس راستے کی نشاندہی کرتا ہے کہ نجات صرف یسوع مسیح خدا کے اندر ہے، اور کوئی آپ کو نجات نہیں دے سکتا، کوئی آپ کو مخلصی، کوئی آپ کو جو ہے امید نہیں دکھا سکتا، زندگی کی امید، آگے آنے والی زندگی کی امید کوئی نہیں دکھا سکتا، صرف یسوع مسیح ہے۔ اگر آپ ایمان لاتے ہیں تو آپ نجات پائیں گے، ورنہ آپ بھی مر جائیں گے، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے۔ پتہ تب چلے گا جب آپ فردوس میں نہیں بلکہ جہنم میں جائیں گے۔ ہاں یہ نظریہ یہ بتاتا ہے کہ ہر انسان کی آخرت جو ہے، یہ بدن جو ہے یہ خاک میں جائے گا، پر یہ روح جو ہے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی روح کہاں جائے گی۔ اس لیے کہتا ہوں کہ یسوع پر ایمان لائیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ روح کہاں جائے گی۔ یسوع مسیح خدا آپ کو برکت دے۔